हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं वो जो भी था, इंटरव्यू था कि स्पीच थी, क्या थी, वो देखेंगे कि जो पीटर नवारो था जिसकी कोई ब्राह्मण स्टेटमेंट से इतना शोर मच गया इंडिया के मीडिया के अंदर कि उसमें हुआ क्या है, क्या पूरी स्पीच थी, क्या बातें हुई हैं, और उसके बाद भाई उसको क्या ठीक तरह से इंडियन मीडिया समझ भी पाया कि वही अंग्रेज़ी की प्रॉब्लम हुई है। तो लेट्स सी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Joining me now on this Sunday morning Futures exclusive is White House Senior Counselor for Trade and Manufacturing, Peter Navarro. Peter, it's always great to see you. Good morning, and thank you for being here. Let's pick apart this ruling a little bit that came out late on Friday from the Federal Appeals Court in D.C., basically saying that most of Trump's tariffs are illegal, the reciprocal tariffs. It was a 7-4 decision. 6 in the majority were appointed by Democrat presidents, and the dissent obviously made its case, which would be that there is a national emergency to take care of here. President Trump took to Truth Social. He said that the decision was highly partisan. He said if these tariffs ever went away, it would be a total disaster for the country. Walk us through the argument that's going to be made all the way up to the Supreme Court. Sure, the boss is always right. You're absolutely right, Jackie. This was weaponized partisan injustice at its worst. Politicians in black robes. You had 6 out of the 7 judges, Democrats, but you also had 12 blue states intervening against Trump. Most curiously, the 5 importers, very small companies, trying to preserve the right to import cheap Chinese crap mostly. If you follow the money, that road leads at least partly to the Koch network, the infamous anti-Trump Koch network. So it was a bad decision. But the good news is the dissent was very, very strong. I think it provides a very clear roadmap to how the Supreme Court can certainly rule in our favor. It dealt with 3 major issues and some minor ones. I got a piece coming out in the Washington Times you can get the details on. But the questions are like, is there a national emergency? Of course, people are dying of fentanyl, and the trade deficit is like absolutely devastating to this country. The tariffs, this is like a semantic issue. Are tariffs qualifying as the regulation of imports? Of course they are. There's plenty of law on that. One of the red herrings they threw out for the majority was that somehow because they argued the tariffs were permanent. Hey, memo to the court. We never said they were permanent. You can't find Lutnick, Besson, Greer, or myself, or the president saying that. If China and the drug cartels from Mexico and Canada stop killing Americans tomorrow, tariffs go away. Ditto if the trade deficit went to 0. So the bottom line, Jackie, a very good dissent provides a roadmap for the Supreme Court. We feel very optimistic. If we lose the case, President Trump is right. It will be the end of the United States. And this is a multi-layered story, Peter, as you and I both. अब यही उसके बारे में ही बात करें, टैरिफ्स का, जिसका इंडिया मीडिया जो है, इंडिया मीडिया नहीं बोलना चाहिए, यूट्यूबर्स जिन्होंने रात दिन उसकी वीडियोस बनाई, और एक जो यूट्यूबर है वो अपने आप को जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मानता है, यहाँ इंडिया के लोग उसको जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं, तो उसने 3-4 ऐसी वीडियोस बनाकर ये दिखाया था कि क्या कि ट्रम्प को, आई शुड ओपन अप एंड टेल यू कि क्या एग्जैक्टली हेडिंग थी। ज़रा एक सेकंड रुको। वो ऐसी हेडिंग्स बनाकर ये लोग बताते हैं इंडिया को क्या बेवकूफ़ बनाते हैं, वो भी मैं दिखाना चाहूँगी। तो एक सेकंड रुको। आई शुड हैव, मुझे पता नहीं था कि ये टॉपिक भी इसमें होगा, नहीं तो पहले प्रिपेयर्ड होती, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं, एक सेकंड, यहाँ पर जब ये टॉपिक आया था, हाँ ये देखो, ये टॉपिक पे कि भैया यूएसए कोर्ट क्रशेस ट्रम्प, नो मोर टैरिफ्स, और उस पे थंबनेल में लिखा यूएस कोर्ट ने नाप दी ट्रम्प की औकात, कहा सारे टैरिफ गैर कानूनी हैं, मनमानी है। तो इस टाइप के। अब उसके बाद क्या, यूएसए में महंगाई और अधिक आर्थिक मंदी का भूचाल,
ट्रंप ने रूस चीन को दी युद्ध की धमकी। देखिए इसमें यूएस ऑन वर्ज ऑफ रिसेशन बट ट्रंप fake है। थ्रेटन्स Right. शीप एंड मैं तो अमेज हूँ कितना इतना फेक न्यूज़ आ रही है। और इसमें लिखा था नो मोर टैरिफ्स, वो भी कितनी फेक थी कि अभी 50% टैरिफ नहीं है क्या। जब ये वीडियो उस बंदे ने बनाया था कि नो मोर टैरिफ्स और नेक्स्ट डे आपको पता चला कि अभी तो 50% चल रहे हैं, तो किसी ने बोला नहीं, कंप्लेंट नहीं की कि क्या बकवास है यार, तुम नो मोर टैरिफ्स बोल रहे हो, यहाँ तो टैरिफ लगे हुए हैं। ऑडियंस इंडिया की जो देखती है इन लोगों को, उनको पता नहीं क्या समझ नहीं आता। और आपको यूएस और ऐसे बंदे के नीचे कमेंट्स में ऐसे उनके पुजारी बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं आपने तो कमाल कर दिया, आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हो, आप इतने वो हो, आप तो बड़े एक्सपर्ट हो, उनके पढ़ के देखो। और यहाँ पे उसने क्लियरली, मतलब इस टॉपिक पे उसने क्लियरली बोला है कि ये जो टैरिफ्स हैं क्यों लगाए जा रहे हैं, फेंटेनॉल का रीजन दिया। उसने ये भी बताया कि कितना ट्रेड डेफिसिट हो रहा है बिकॉज ऑफ जिस तरह से रॉन्गली यूज किया जा रहा था इस ट्रेड को, जो डील्स हो रही थी, सब कुछ उसने बताया। और उसने कहा है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और वहां पे भी होगा, सब उसने बताया। तो इसमें उसके बाद भी अगर किसी को ये न्यूज समझ नहीं आती तो गॉड नोज। और ये यूएसए से रिलेटेड है, इतना तुमको हाई तौबा मचाने की इंडिया में क्या जरूरत है। अपनी कंट्री का कवर करो ना यार, वहां पे उससे रिलेटेड न्यूज करो। पर आगे भी चलते हैं, तो ये तो थोड़ा सा पार्ट है, पर मैं ये बता रही हूँ कि इस छोटी सी चीज का, जहां पे इसने देखो आराम से समझाया, सब बताया। और यहाँ पे ये भी दिखा रहे प्रेसिडेंट ट्रम्प की मेजर डील्स कौन कौन सी हुई हैं, सब कंट्रीज का नाम भी बता रहे हैं। तो आप अगर देखोगे कि एक नॉर्मल सी न्यूज को कैसे ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप का वो हो गया, अभी मैंने टाइटल पढ़ी दी है, ये हैं आपके जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स। So as we're talking about this decision playing out and the arguments that will be made, we're also looking at negotiations with India, that 50% tariff now being imposed on that country because it supports Russia essentially by buying that oil on the... क्या बोला उसने कि 50% टैरिफ्स, और उसमें मेजरली इसलिए क्यों हुआ है क्योंकि ऑफ इंडिया बाइंग रशियन ऑयल। करेक्ट। black market for cheap. But India is not the only offender. China is as well. Is the implementation of extra tariffs on India enough to choke Vladimir Putin? और पूछे, is this enough to choke Putin? Well, let's be clear. We have 50% tariffs now on India, but we also have a little over 50% tariffs on China. So क्या बोला उसने कि we have 50% tariffs on India, but we have little over 50%, मतलब 50% से थोड़े से ज्यादा on China। ये वो बंदा बोल रहा है। अब आप बता दो भैया, क्या झूठ बोल रहा है ये? how much higher do you want to go without actually hurting ourselves? But look, एंड इतना करने के बाद हमने क्या देखना है कि और कितना बढ़ा सकते हैं विदाउट हर्टिंग आवरसेल्व्स। ऑब्वियसली अपनी कंट्री को थोड़ा को नुकसान कर देंगे, वही तो हम बताई जा रहे थे, वो उसने आज क्लियर भी कर दिया है। पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आती। issue because the only thing you have to know is that before Putin invaded Ukraine in February 2022, India didn't buy Russian oil to speak of. Very, very small amounts. What happened? Well, the Russian refiners went in and got into bed with big oil in India. Putin gives Modi इन बेड। अब इन बेड का मतलब अगर इंग्लिश में समझ नहीं आता तो भैया नोबडी कैन, मतलब उनके साथ ये डील कर दी या ऐसी कोई बातचीत करके, हाँ हैंडशेक्स हो गए, दोस्ती हो गई, ये मतलब है उसका। तो उसने यही कहा कि भैया कि जब ये हुआ तो वहां पे फिर से पीछे मुड़ के थोड़ा सा और सुन लेते हैं और आप अपने आप समझ लो, नहीं समझ आएगा तो बोल देना, ट्रांसलेट कर दूंगी। into bed with big oil in India. Putin gives Modi a discount on the crude. They refine it and they ship it to Europe, Africa, and Asia at a big premium, and they make a ton of money. Now, what's wrong with that picture? Well, it fuels the Russian war machine. India's nothing but a laundromat for the Kremlin. It kills Ukrainians, and what do we have to do as taxpayers? We got to send them more money so Ukraine can defend themselves. And on top of that, by the way, the 25% of the 50% is because India is the Maharaja of tariffs. They have the highest tariffs in the world. So they export us a bunch of stuff. They won't let us sell to them. So who gets hurt? Workers in America, taxpayers in America, Ukrainians in cities getting killed by Russian drones. So I would look. Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy. Getting into bed with Xi Jinping and this, इसका मतलब ये है कि भैया वो उनके साथ दे रहा है, उनके साथ दोस्ती कर रहा है, उनकी साइड ले रहा है।
इसका ये मतलब नहीं, दिस इज अ वे ऑफ स्पीकिंग जिसको गलत सेंस में जो है इंडिया के लोग, क्योंकि अंग्रेजी समझ नहीं आती, बेड सुन लिया तो पता नहीं कहाँ से दिमाग में पता नहीं क्या दिमाग में आ गया। टॉकिंग स्टाइल है, हाँ, ये एक Literal स्टाइल नहीं उसका मतलब हाँ. होता, इट इज जस्ट सेइंग कि फ्रेंडशिप Yeah, है। this is कि भैया he is getting closer and closer to them and having friendship with them इस सिचुएशन में। और उसने ये भी बता दिया कि कैसे चालाकी से पुतिन और रशिया क्या कर रहे हैं, वो इंडिया की जो कंपनीज हैं या प्राइवेट लोग जो हैं कंपनीज ओनर्स, उनके साथ मिलके सस्ते के तेल लेकर वहां से उनसे जो है बेच रहे हैं और फिर उसको रिफाइन करके आगे बेच रहे हैं यूरोप में और एशिया में और अफ्रीका में, और उसे खूब कमाई कर रहे हैं। Well, I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. Yeah. एक मिनट, अब ये ब्राह्मण का बोला कि यू हैव ब्राह्मण्स प्रॉफिटेरिंग at the expense of other people. of other means normal common Indian इंसान के और इंडिया के, और आप किसी भी एंगल से सोचते हैं मतलब दूसरे लोगों के को यूज करके या उनको नुकसान दे के ये जो ब्राह्मण्स हैं ये अपना फायदा कर रहे हैं। अब ये ब्राह्मण्स इंडिया के ब्राह्मण्स जो हम बोलते हैं वो नहीं है बाबा, यही मैं पता करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे शक ये हुआ। मैंने कहा भैया यूएसए में कास्ट सिस्टम क्या, इतना इंडिया के बारे में पता ही नहीं लोगों को, तो कास्ट सिस्टम का क्या पता होगा कि इतना जो इंडिया में बोले कास्ट सिस्टम कास्ट। मैंने कहा स्टोरी तो दे पता करूं कि एक ब्राह्मण क्या है। तो अब उसका जो है मजेदार बात आप लोगों को बताती हूं कि क्या किसी ने भी अक्ल लगा के इंडिया में बात की कि नहीं की, कि यूएसए में एक होते हैं बॉस्टन ब्राह्मण, और ये बॉस्टन ब्राह्मण जो बोलते हैं वो होते किनको कहा जा रहा था, वो कहते हैं अपर क्लास एलीट जिनके पास ओल्ड मनी है, पुराना मतलब क्या बोलते हैं वो जनरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं जनरेशन, हाँ खानदानी अमीर, हाँ जो खानदान से खानदान पे अमीर हो रहे हैं। तो वो उसका ये मतलब था जैसे यूएसए में बॉस्टन ब्राह्मण्स होते हैं, वो बॉस्टन ब्राह्मण तो बोल नहीं सकता इंडिया। कहने का मतलब है कि जो न्यू इंग्लैंड एरिया में जहाँ पे पहले सेटल हुए थे वहां पे जो एलीट है, जो खानदानी अमीर है, उनको यहाँ बोला जाता है बॉस्टन ब्राह्मण। सिमिलर बताने के लिए जैसे इंडिया में ब्राह्मण्स हैं वैसे जो टॉप क्लास है ये बॉस्टन ब्राह्मण है। वो बोलने की जगह कि बॉस्टन उसने नहीं यूज किया वर्ड, क्योंकि इंडिया के ब्राह्मण है तो वो उसको वो बोलने की जगह कि बॉस्टन उसने सिर्फ ब्राह्मण वर्ड यूज किया। और उसका मतलब ये था कि जो अमीर लोग हैं, अपर क्लास एलीट क्लास, और वो कौन है बिग बिजनेसमैन, उसका ये मतलब ही वाज ट्राइंग टू से जो सबसे अमीर लोग हैं वो प्रॉफिट कर रहे हैं। एग्जैक्टली और कॉमन इंसान उसका कोई कास्ट से लेना देना नहीं था, उसका मतलब बॉस्टन ब्राह्मण बोलने का था कि जो अपर क्लास एलीट अमीर खानदानी अमीर लोग हैं वो प्रॉफिट कर ले रहे हैं, बाकियों का कोई फायदा नहीं हो रहा, वो इससे कमाई कर रहे हैं। और वो कौन है आप सबको पता ही है, जिनकी तेल की कंपनियां हैं। Correct. तो वही बात है, क्योंकि जब ये बात हुई मैंने कहा भाई ये क्या लॉजिक बन रहा है, कोई थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि अंबानी क्या ब्राह्मण है, नहीं है तो वो कैसे बोल देगा उसको ब्राह्मण? He doesn't know. He doesn't even know caste system. कौन सा बिजनेसमैन क्या कास्ट है, he doesn't know. He's just talking about elite, rich people, upper class जो है। upper class का मतलब ये वो upper class नहीं कि lower class scheduled caste हो, वो upper class का मतलब है अमीर लोग। That is what he was saying. जिसको इतना ट्विस्ट करके इतना बोल दिया कि भैया वो तो इंडिया को तोड़ना चाहता है कास्ट सिस्टम में, उसके ये बोलने से इंडिया टूट जाएगा। अगर उसने समझो बोला भी होता तो क्या इंडिया इतना वीक है कि उस एक यूएसए nobody knows about caste system here। क्या बात कर रहे हो यार, कहां से कहां का न्यूज कर दिया। तो आई होप अब ये बात समझ में आई होगी, नहीं आई तो जाके बॉस्टन ब्राह्मण सर्च कर लेना, उससे आपको समझ आ जाएगी। सो उसका मतलब था जो अमीर लोग हैं, टॉप क्लास बिजनेसमैन, और हमें पता है इंडिया में वो कौन है, तो वो यही कह रहे हैं कि वो प्रॉफिटिंग कर रहे हैं। Real quick on China, November 10th deadline for trade negotiations. Do you think that's realistic? Yes, look, it's as Scotty Besson said, it's an ongoing negotiation. But let's remember this: we got over 50% tariffs on communist China, and we have over 15% tariffs over 50. जो ये नहीं बताते इंडिया का मीडिया, यूएसए इंडिया पे क्यों लगा रहा है, चाइना पे क्यों नहीं लगा, यहाँ उसने ये भी बता दिया। More than 50% लगे हुए हैं, ये बोला उसने, कंबाइंड करें सब कुछ।
जो भी वैसे कैलकुलेट किया You हो। also wrote an opinion piece in the Federalist. तो बाकी आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो ये आप खुद ही जाके पूरी जो इंटरव्यू है या जो भी है उसको आप देख सकते हो। पर अब आपको पता चल रहा है कि हर चीज को कैसे ट्विस्ट किया जा रहा है। क्या इसमें वो पार्ट दिखाया था जिसने भी यूज किया, हमने तो वीडियोस अभी किसी की इस टॉपिक पे देखी नहीं, पर जिसने भी अगर वीडियो दिखाई या बात की, क्या उसका पहले का पार्ट बताया जिसमें उसने कहा था कि हमने इंडिया पे 50% लगाए हैं और चाइना के ऊपर ओवर 50% है। वो सब कोई ना बोलेगा ना पार्ट दिखाएगा, पर अपना नरेटिव जो है बनाने के लिए, अपना व्यूज करने के लिए बहुत केयरफुल रहो। ये सब लोग जो है आपको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, बहुत गलत, इमोशनल करके अपने पैसे पागल कर रहे हैं और देश का भी बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। they just want to earn money, even if they want to give आप कह सकते हैं inaccurate information, they don't care। और लोग उनको इज्जत देते हैं सोच के कि ये टीचर है या इसने देश के कुछ सालों के लिए, चलो पूरी जिंदगी तो नहीं पर थोड़े से सालों के लिए सेवा की है। और भी कई बड़े सारे हैं कि भैया ये बंदा जो है इसका प्रोफेशन ये रहा है। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कि जो कर्मा कर रहा है इंसान पैसों के लिए कर रहे हैं, थोड़े से पैसों के लिए चले जाना है भैया। अगर ये पूरा कोट करते जिसमें वो कह रहा था कि चाइना के 50 से ऊपर है, तो ये क्यों नहीं दिखाया और क्या थोड़ा रिसर्च की थी, किसी एक ने ब्राह्मण लेके उसको कर दिया, पता नहीं कहां से। मुझे तो ऐसे लगने लग गया कहीं एक टॉप पे कोई बैठा है, वो बोलता है ये न्यूज करनी है और वो इस न्यूज और वही कहानी जो होती है वो हर जगह पे आ जाती है। इतना भैया ब्राह्मण का वही सबने बना दिया, फिर भैया ट्रम्प का कुछ होता है तो वही उसको नरेटिव को टेंट करके वही हो जाता है। जो पीपल है, कोई एक बंदा सच बोलता ही नहीं है। मैं तो इतना हैरान हो रही हूँ। पीपल इन पावर डिसाइड कि क्या नरेटिव होगा। आई डोंट नो कौन है पीपल इन पावर है कि कोई ऊपर बड़ी बड़ी मीडिया चैनल या ये लोग एक दूसरे को ऐसे ही देख लेते हैं, अच्छा इसने ये वीडियो बनाई है और इसने ये कहानी बोली है, खुद को तो अक्ल नहीं है, वो भी कहीं से देखता है फिर वो बोलता है मैं भी बना देता हूँ, वो उसको देख के किसका व्यू आया मैं बना देता हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, पर एनीवे हमने तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भैया बॉस्टन ब्राह्मण्स जो होते हैं उसी का कॉन्टेक्स्ट में ब्राह्मण यूज वर्ड किया गया था। यहाँ किसी को कास्ट सिस्टम की एबीसी भी नहीं पता है, और अगर पता होती तो उससे इंडिया का ही जो है जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, इंडिया की जो होती है वो खराब होती इमेज। तो थैंक गॉड यहाँ पे लोगों को ये नहीं पता इंडिया में कोई कास्ट सिस्टम भी हुआ करता था, यहाँ है या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो उस पर बिलीव नहीं करते और ना हमने कभी उसको फॉलो किया है या देखा है। तो उस एंगल में जाके हम लोग इंडियंस ही जब ऐसी बात करके लोगों को अवेयर करते हैं तो उससे और बल्कि इंडिया की इमेज ही खराब होती है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।